रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. आई एक्चुअली हेल फ्रॉम शोपियान. आई हैव डन माई बैचलर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेस and I then did turf management from University of Massachusetts. So because of my technical background, I was able to create and maintain the golf courses of JNK over a period of good 14-15 years. Some of the golf courses were remodeled, like Gulmarg Golf Course, Pahalgam Golf Course, Kashmir Golf Course, Sidra Golf Course. We designed and made it. And after this journey, which has been quite interesting, because it is always a male dominated kind of a profession, golf. So I became India's first lady golf course superintendent, and then I became India's first lady who was the secretary and a director on the golf course. So I have always taken it in my stride, given credit to my upbringing, given credit to my value system, and which has been imparted to me by my parents, and the support system I always got from my family. The present assignment with me is the Secretary Sports Council. So my job is professional sport development of JNK. And then when I joined the department, the youth footprint, the involvement of youth in the sports was 1 lakh. Today we can easily claim that we have actually increased it to 17 and a half. We have established Khelo India centers. We have given a lot of impetus to rulers, sensitive and tribal areas. We have given a lot of impetus to women oriented sports, like we have now volleyball teams who are like women volleyball teams. We have hockey. We have a very good center running in JNK, right in Jammu KK Hoko Center, wherein underprivileged children and girls especially are getting free training. We are managing their equipment, we are managing their diet, we are managing their other requirements as well, and it is bringing in a lot of good results. We have a very good and promising center of excellence for fencing in Jammu. Recently you must have seen all the top fencers like of India are from JNK में उसका presence होता है. Then we have a very well established water polo sports center, and 56 disciplines are being looked after, and it is pan J&K. 20 districts are getting equal attention, and this year's target is 35 lakh youth engagement vis-a-vis sports. The journey has not been that easy, because as women we always have to prove ourselves doubly in the tasks at the home, balance between, rather juggle between the work and children and societal pressure and all that. But alhamdulillah things have been okay with me. हम women empowerment की बात करेंगे. So in our society मैंने जब भी देखा है women empowerment का बड़ा शोर है, लेकिन मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ. I always believe in philosophy. आँखों मंदा आँखें जित जन्मे राजा. हम राजे महाराजों को जन्म देते हैं, ठीक है, तो उस आदमी को मैं वो कैसे मुझे एम्पावर कर सकता है जो मेरी कोख से जन्मा है. येस, वी हैव टू एम्पावर सोसाइटी. हमें सोसाइटी को इतना एम्पावर करना है ताकि लेडीज़ को, लड़कियों को इक्वल बराबरी का दर्जा दिया जाए, चाहे वो हमारा घर है, समाज ओवरऑल, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे हमारे बाकी संस्थाएं हैं. हमें हर जगह ये स्ट्रगल करना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए कि औरतों को सीरियसली लिया जाए, उनकी हक अदाई की जाए. और ये स्ट्रगल हमारे पहले दिन से शुरुआत होती है, जब हमारी एक गर्ल चाइल्ड, एक लड़की का पालन पोषण होता है, उसकी पढ़ाई होती है, उसके साथ घर में व्यवहार का मसला होता है. तो हमें लड़कों को भी इक्वली सिखाना चाहिए कि अगर कप उठाना लड़की का काम है, तुम्हारा भी है. माँ को अगर वो किचन में हेल्प करती हो, आप जाके बाज़ार से 4 चीज़ें लेके आओ. तो ये जो इक्वालिटी का घर के चोर्स में जब लड़का लड़की बराबर होती है, ये हम माँओं पे भी, माँ बाप पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि हम सही से पालन पोषण करें लड़के और लड़के का, ताकि यही जब कल को सोसाइटी के एक ज़िम्मेवार इंडिविजुअल बन जाते हैं, तो ये हमारे देश में एक नया माहौल पैदा करे कि लड़का लड़की बराबरी है. लेकिन तो है, पहले जब मैं गई थी तो सब कहते थे कुछ नहीं कर पाएगी. मैं दिल से बात करती हूँ और सबको लगता था कुछ नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो किया, सरकार में इसका जो योगदान है, सरकार का जो सपोर्ट सिस्टम है मेरे लिए, खेलों के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो बहुत इमंस रहा है. शायद उसके बगैर मैं ये सब नहीं कर पाती. और जितना आज तक हुआ है, देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसी यहाँ बन गई
है। हमने SO12 जो था उसमें काफ़ी केसेस थे। SO12 में पहली बार J&K में 25 सीटें नॉन गेजेटेड तो पहले से ही थी, 5 गेजेटेड भी हो गई। उसमें पॉलिसी में इतना सब कुछ हो गया कि पैन J&K स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद हमारे 20 खेलो इंडिया सेंटर में हमारे 40 बच्चे नौकरी लगे। अभी PMDP के हम शुरुआत करें, 60 बच्चे उसमें नौकरी लग रहे हैं। पैन J&K में हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर बन गया, और आपने अखबारों में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, इनकी इनाग्रेशंस भी हो रही हैं। सो वी आर टेकिंग द टास्क, वी आर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर डिलीवरिंग इट। हम प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, बच्चे उसमें खेलते हैं या उनकी ट्रेनिंग के लिए कोचेज़ लग रहे हैं, इक्विपमेंट आ रहा है। तो बदलाव तो है, और इस बदलाव के साथ मुझे जुड़ के बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इस बदलाव, इस चेंज का मैं एक हिस्सा हूँ। लड़कियों के लिए बदल रहा है कश्मीर। आप अभी मेरे साथ किसी भी फील्ड में चलिए, अगर वहाँ लड़के हैं वहाँ लड़कियाँ भी हैं। अगर आप टीम्स की बात करेंगे, मेडल विनिंग की बात करेंगे, अगर लड़के मेडल जीत रहे हैं तो लड़कियाँ भी मेडल जीत रही हैं। और सबसे अहम बदलाव जो मैंने देखा, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडोर के बाहर जो पेरेंटल सपोर्ट है लड़कियों के लिए, मतलब उनके माँ बाप साथ आते हैं, उनके माँ बाप छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, इससे बड़ा बदलाव। क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट के लिए लड़की कुछ नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जाती हैं। लड़कियां एक सिंफ नाजुक होती हैं, सेंसिटिव क्रिएचर है, ठीक है। तो लड़कियों को आते जाते इतना सपोर्ट मिल जाए कि पेरेंट्स आके छोड़ जाएं, पेरेंट्स को टाइमिंग का पता हो, पेरेंट्स को ये देखना है कि अगर मैं बच्चे मेल चाइल्ड के लिए उसको पिक एंड ड्रॉप दे सकते। मैंने माओं को वेट करते हुए देखा है, मुझे फ़ख्र होता है ऐसे पेरेंट्स पे देखे, एंड द रिजल्ट्स आर देयर। येस्टरडे इटसेल्फ हमारी लड़की है फेंसिंग एकेडमी जम्मू, श्रेया गुप्ता, मैंने उसका पेरेंटल सपोर्ट देखा है कि कैसे उसकी माँ टोटली उसके साथ अटैच, एंड शी इज़ वन ऑफ द फेंसिंग टॉप्स में, पूरे ओलंपिक के लिए प्रोबेबल है देश की, जम्मू से है। और मैंने जब तक देखा है कि माँ बाप का जितना सपोर्ट बच्चियों को रहता है, इट इज़ ट्रिमेंडस। मेरा ये संदेश होगा कि सबसे बड़ी परवरिश में लड़कियों को कमतर मत समझिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप मेल चाइल्ड के लिए रखती हैं, लड़कियों के लिए भी रखें। उनको पढ़ाई के दौरान उनको खेलों से जोड़िए, बिकॉज़ खेल जितना आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर एक लड़के लड़की में इन्फ्यूज़ करता है, उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। खेल और खिलाड़ी ये एक ऐसा ही हमारे पास पावरफुल वेपन है आज के दौर में, आज के समाज में। बच्चों को ड्रग्स जैसी वबा से दूर रखना, बच्चों को एंटी सोशल एक्टिविटी से अगर बाहर रखना है, उसको किसी भी खेल से जोड़ दिए। वो अपने फिटनेस में लगा रहेगा, वो अपने परफॉर्मेंस में लगा रहेगा। स्कूल के बाद जिस भी खेल या फील्ड या इंडोर से या किसी भी फील्ड ऑफ प्ले में जुड़ा है, उसमें आने। मैंने खुद अपनी आंखों से 1.5 साल का मेरा तजुर्बा है, मैंने बच्चों को बदलते देखा है। पेरेंट्स आते हैं, पहले हमें वो स्टोरीज़ बताते थे, आजकल मेडल विनिंग कोई आता है, दूसरे दिन मेरे पास माँ बाप हमारे बच्चे को रिस्क में डाल दो। तो ये बदलाव लाना है, और हमें मिलकर, हम सबको मिलकर, समाज के हर स्ट्राटा को, हर एक एलिमेंट को मिल के हमने ये साथ में चेंज लाना है।